So we will start with a quick revision of cyclic process. And after cyclic process, we have seen pre-expansion. Then we will go to the next topic. So if you remember, कल हमने in detail देखा था what is a cyclic process. So we'll just note down what are the important points in cyclic process. क्योंकि अगला जो topic है, it is related with this. So do you remember what is cyclic process? What is cyclic process? A thermodynamic process that brings the system back to its initial state is known as cyclic process. So a thermodynamic system, a thermodynamic process basically, a thermodynamic process which brings the system back to its initial state is known as cyclic process. तो ये भी एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है. इसमें भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यूज चेंज होगी. सिर्फ ओनली थिंग इज दैट इन दिस केस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम. जहां से सिस्टम स्टार्ट हुआ था वहीं पे सिस्टम अल्टीमेटली जाएगा. इफ यू वांट टू शो दिस विद द हेल्प ऑफ पीवी डायग्राम, अगर आपको इंडिकेटर डायग्राम शो करना है तो ये प्रेशर एक्सिस था, ये वॉल्यूम एक्सिस है, एंड यू हैव अ स्टेट, सम स्टेट ए, राइट. तो ये जो प्रोसेस है, इट विल टेक द सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट ए टू अनदर स्टेट बी एंड बैक टू ए. तो इसको आप बोलते हो साइक्लिक प्रोसेस. मतलब अगर ए से स्टार्ट हुआ तो ए पे ही खत्म होगा, बी से स्टार्ट हुआ तो बी पे वापस एंड होगा. तो सच अ प्रोसेस कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस. करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? श्योर? देन वंस यू नो दिस, इसके बाद आपने डिफाइन तो कर लिया, थर्मोडायनामिक प्रोसेस विल ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस. एंड यू नाउ हैव अ पीवी डायग्राम. तो यहाँ से आप बोल सकते हो in this process initial and final states are same. Initial and final states are same. That is clear? Then what was the next point? What about change in internal energy? कितना था इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज? जीरो. देखो, प्रोसेस साइक्लिक होना, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होना, ये तब हो सकता है जब देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो. टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी of the system is zero in a cyclic process. तो अगर एक्सपांशन होते वक्त, क्योंकि जब एक्सपांशन होगा मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वर्क इज डन बाय द गैस. इफ वर्क इज डन बाय द गैस, देन सपोज गैस ने, सिस्टम ने खुद का इंटरनल यूज किया, तो इंटरनल विल डिक्रीज. लेकिन जब वापस कंप्रेशन होगा, नाउ वर्क इज डन ऑन द गैस, तो जितना इंटरनल एनर्जी यहाँ पे लॉस हुआ था उतना का उतना वापस से गेन होगा. मतलब अल्टीमेटली टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो इन अ साइक्लिक प्रोसेस. देन व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट? आई टोल्ड यू इन टोटल 4 points. What about first law of thermodynamics? Q equal to delta U plus W. So according to first law of thermodynamics, what you have is Q equal to delta U plus W. लेकिन delta U क्या है इस केस में? 0. Therefore, what you will get here is W.
क्योंकि डेल्टा यू 0 था, तो Q इक्वल टू W, मतलब वॉट एवर अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड इज यूज टू डू वर्क। है दैट क्लियर? तो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आपको याद होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, thermodynamic process which brings the system back to its original state, original मतलब initial state, is known as cyclic process. Number 2, PV diagram, A से start हुआ B पे गया and goes back to A, right? Number 3, initial and final states are same. Number 4, total change in energy of the system is 0. Number 5, according to first law of thermodynamics, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू 0 था तो Q इक्वल टू क्या आएगा? W. Then we have seen what is free expansion. Free expansion of gas. ये कल हमने just we have discussed this orally. We were yet to write down important points of this. So free expansion of a gas. तो आपको याद होगा what is free expansion? What is free expansion? It is an adiabatic expansion in which there is no transfer of heat between the system and its environment. So it is an adiabatic expansion. It is an adiabatic expansion in which there is no transfer of heat between the system and surrounding, between the system and its surrounding and its environment. That is Q equal to 0. उसके बाद there is no transfer of heat and there is no work done. तो फ्री एक्सपेंशन का नाम फ्री इसके लिए है क्योंकि हीट ट्रांसफर भी नहीं होता और वर्क भी नहीं होता। also there is no work done. There is no work done. No work done by the system, no work done on the system. There is no work done. That is W equal to 0. And according to first law of thermodynamics, तो आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. Q 0, W 0, तो डेल्टा U भी 0. So there is also no change in internal energy. Then मैंने आपको बताया था कि ये जो थर्मल एक्सपेंशन है, सॉरी ये जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, इट इज अ सडन प्रोसेस. इट इज अ सडन प्रोसेस. फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको sudden burst of a balloon, sudden burst of a tire. So this process is a sudden process. It is a very rapid process जिसमें system जो है all of a sudden it comes into contact with environment. मतलब वहाँ पे expansion के लिए piston का motion involved नहीं है. Normally हम लोग क्या देख रहे थे, जब expansion होता है then the piston moves up. But in this case there is no motion of the piston because the motion is extremely rapid. आपने बलून को बर्स्ट कर दिया, टायर फट गया, तो डायरेक्टली द एयर इनसाइड विल कम इन कांटेक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट. सो इट इज अ वेरी रैपिड प्रोसेस. इट इज अ वेरी रैपिड प्रोसेस, right, in which there is no displacement of the piston. Example, you can write down 2 examples of it. Example, sudden burst of a balloon or a tire. Then if you remember, हमने एक टॉपिक देखा था जिसमें heat added during
थर्मोडायनामिक प्रोसेस डिस्कस किया था, वहां पे दो एग्जांपल ली थी। एक में था सडन एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन, और दूसरे में था कंट्रोल्ड मैनर में आपने हीट ऐड किया। तो कंट्रोल्ड मैनर में हीट ऐड करने का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और ये जो प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है? इट इज अनकंट्रोल्ड। सो दिस प्रोसेस इज एन अनकंट्रोल्ड प्रोसेस। इसमें हम सिस्टम को स्टेट चेंज करने के लिए कंट्रोल कर नहीं सकते, इट इज वेरी रैपिड। सो दिस प्रोसेस is unlike other thermodynamic processes, unlike other thermodynamic processes, and it is an uncontrolled process. तो जो रैपिड प्रोसेस होता है ऑल ऑफ अ सडन यू कैन नॉट कंट्रोल दिस, तो ये अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है। देन जब जब प्रोसेस अनकंट्रोल्ड हो, देन द सिस्टम गोज थ्रू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स। Therefore, the system goes through non-equilibrium states. और जब सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से जाता है, यू कैनॉट प्लॉट पीवी डायग्राम। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ पीवी डायग्राम। देयरफॉर पीवी डायग्राम for such a process cannot be plotted. पीवी डायग्राम तो प्लॉट नहीं कर सकते, यू कैन ओनली शो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, बट one can only show initial and final states on PV diagram, on a pressure volume diagram. क्लियर यहाँ तक? तो फ्री एक्सपांशन के भी पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे फ्री एक्सपांशन? it is an adiabatic expansion in which there is no transfer of heat between system and surrounding. Also there is no work done, and since work done is zero and Q is zero, delta U is also zero. It is a very rapid process in which there is no displacement of the piston. Example, sudden burst of a tire or a balloon. Then the process is not like other thermodynamic processes, और ये जो process है, it is uncontrolled process. क्योंकि प्रोसेस अनकंट्रोल्ड था, तो सिस्टम गोज थ्रू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स। और अगर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स है, तो सच अ प्रोसेस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम पे यू कैन ओनली शो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, दैट्स इट। तो यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो दो इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए, ठीक है? फ्री एक्सपांशन यू विल नॉट नीड अ लॉट, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। सो इफ यू नो in detail what is cyclic process, now we can discuss what is a heat engine. अभी heat engine मतलब क्या? Let us see what is a heat engine. Well, by the way, how many of you have heard of a transducer? What is a transducer? What is a transducer? सुना है क्या ये word? Transducer सुना है? How many of you have electronics? What is a transducer? देखो, बेसिकली ट्रांसड्यूसर का मतलब ये होता है अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर। फॉर एग्जांपल, इवन दिस माइक्रोफोन इज अ ट्रांसड्यूसर, क्योंकि व्हाट आई एम सेइंग, जो भी मैं बोल रहा हूँ, द साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। So a device that converts one form of energy into another form of energy is called as transducer. So जो heat engine है, it is like a transducer because heat engine converts
हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। अब हीट इंजन नाम इसलिए दिया ना हमने, हीट इंजन। तो हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। तो विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक्स, फिर हम देखेंगे हाउ डज अ हीट इंजन वर्क, विच आर डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड। तो सबसे पहले टू स्टार्ट विद एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट इंजन। इट इज अ डिवाइस, it is a device which converts heat into mechanical work, or only work is okay, mechanical work. यहाँ तक clear? So what is a heat engine? It is a device which converts heat into mechanical work, right? Then ये जो heat engine है, it goes through some stages, और बेसिकली ये एक साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म करता है। किसको करवाता है? सिस्टम को। सिस्टम कौन है आपके पास? गैस। तो थोड़ा सा वर्ड्स का डिफरेंस आएगा, हाँ, नोट्स में मैंने कुछ लिख के रखा है, ठीक है, एज इट इज। आई विल नॉट रिप्रोड्यूस हियर, आई जस्ट हाईलाइट सम पॉइंट्स, so you should know this. So what is the device? This device, heat engine, what does it do? Converts, किसको convert किया? Heat into work, correct? So basically heat engine takes the system, it takes the system through a cyclic process. Through a cyclic process. Good. Again I am saying notes में थोड़ा सा अलग वर्ड आएगा। अभी मैंने लिखा है यहाँ पे it goes through some stages and it performs cyclic process। एक ही बात है, it takes the system through a cyclic process, one and the same thing. Then किसी भी थ्योरी टॉपिक के लिए हमेशा एक फॉर्मेट याद रखना, बेसिक डेफिनेशन। हैव यू डिफाइंड हीट इंजन? यस। देन इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में पूरा पहले समझ लो कि हीट इंजन करेगा क्या। तो उसके लिए एक छोटा सा मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। व्हाट हैपेंस इज, तो हीट इंजन का काम क्या है? सबसे पहले नॉर्मली हमारे पास सिस्टम होता है एनक्लोज इन अ सिलेंडर fitted with movable massless frictionless piston. तो what happens in this case, हमारे पास एक सिस्टम है, और सिस्टम का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा। नॉर्मली हम सिस्टम मतलब क्या बोलते हैं? गैस। नॉर्मली सिस्टम इज गैस। इन दिस केस द सिस्टम इज कॉल्ड एज वर्किंग सब्सटेंस। क्या बोलते हैं इसको? वर्किंग सब्सटेंस है सिस्टम ही, बट व्हाट इट इज कॉल्ड एज वर्किंग सब्सटेंस। अब वर्किंग सब्सटेंस भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो वर्किंग सब्सटेंस कैन बी एन आइडियल गैस। हम अभी तक वही बोल रहे थे, व्हाट इज वर्किंग सब्सटेंस? आइडियल गैस enclosed in a cylinder fitted with movable massless and frictionless piston, correct? अब in this case इस आइडियल गैस को हम नाम देते हैं वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस इज ऑफ टू टाइप्स। या तो ये आइडियल गैस होगा, अगर आइडियल इंजन है तो। अब ये आइडियल हीट इंजन क्या है वो आगे समझेगा। या फिर इट कैन बी मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर एंड एयर। फॉर एग्जांपल, आपका जो गाड़ी का इंजन होता है जिसको आप पेट्रोल इंजन बोलते हो, पेट्रोल इंजन को और एक नाम है गैसोलीन इंजन और डीजल इंजन। तो उस केस में डू यू यूज फ्यूल एज आइडियल गैस? नो, आपके यूज करते हो पेट्रोल या फिर डीजल। तो वर्किंग सब्सटेंस इन दैट केस इज अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर। फ्यूल वेपर क्यों? क्योंकि वेपर फॉर्म में आता है वो फ्यूल। व्हेन यू फिल इट इनसाइड वो लिक्विड है, बट व्हेन इट गोज इनटू दिस चेम्बर इट बिकम्स फ्यूल वेपर। तो वो वेपर बन जाता है। तो वेपर अलॉन्ग विद मिक्सचर ऑफ एयर। अब ओवरऑल व्हाट इज द प्रोसेस हियर? ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, इट कैन बी आइडियल गैस, इट कैन बी फ्यूल वेपर, जो होगा वो। बट प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है, द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट। कहाँ से एब्जॉर्ब किया वो बाद में देखेंगे, बट रिमेंबर द स्टेप्स। वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट। पार्ट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब, जितना भी हीट एब्जॉर्ब किया उसका कुछ पार्ट विल बी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल वर्क,
और जो रिमेनिंग पार्ट है, हीट का जितना पार्ट वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ, दैट इज रिजेक्टेड टू द एनवायरमेंट, राइट। तो ओवरऑल 3 steps are involved. Number 1, absorption of heat. Number 2, conversion of heat into work. Number 3, rejection of the remaining heat to the environment. So to start with, हम तीनों के तीनों स्टेप डिटेल में देखेंगे. We will also see PV diagram, but for introduction purpose, you can say the working substance absorbs heat, converts part of the heat into mechanical work, and rejects the remaining heat to its surroundings, to its environment. Is that clear? So you must know, number 1, what is heat engine? A device that converts heat into work, mechanical work. क्या करेगा ये? It takes the system through a cyclic process. When I say cyclic process, मतलब initial और final state same होने वाले हैं, right? And just a brief, एक लाइन में बताना हो, what does a heat engine do? क्या करता है heat engine? The working substance absorbs heat. मतलब heat engine ने working substance को क्या किया? Force किया to absorb heat. The working substance absorbs heat, converts part of the heat into mechanical work and reject the remaining heat to its environment. यहाँ जो environment है उसको sink बोलते हैं. तो why it is called a sink मैं वो भी बताऊंगा. We will go through details of it one by one. यहाँ तक क्लियर? अब किसी भी हीट इंजन के there are 3 important components. So we'll discuss one by one what are elements of a heat engine. और याद रखना हीट इंजन भी अलग अलग टाइप का होता है. तो हम फिलहाल टेम्पररी वी आर डिस्कसिंग जनरल हीट इंजन, क्योंकि आगे जाके कोई गैसोलिन इंजन, मतलब उसको कार्नोट इंजन भी बोलते हैं. वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल लेटर. अभी हम फिलहाल सिर्फ बेसिक आइडिया क्लियर कर रहे हैं कि हीट इंजन क्या है, वर्किंग सब्सटेंस क्या है, उसके बाकी एलिमेंट्स क्या है, जनरल प्रोसेस क्या है. तो हीट इंजन क्या है सबको पता है. एक मशीन है जो हीट को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल वर्क में. प्रोसेस क्या है? हीट एब्जॉर्ब करेगा, पार्ट ऑफ हीट कन्वर्ट करेगा वर्क में, बाकी रिजेक्ट कर देगा. करेक्ट. अब डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इंजन you may have different elements, but basic theoretical heat engine में there are 3 elements. So let us discuss which are the elements of a heat engine. तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है दैट इज वर्किंग सब्सटेंस. अब यहाँ पे वर्ड चेंज क्यों किया? यू सी, अभी तक हम हर जगह पे बोल रहे थे सिस्टम इज अ गैस confined in a cylinder fitted with movable massless and frictionless piston. But now हम उसी सिस्टम को बोल रहे हैं यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस, क्योंकि अब वर्किंग सब्सटेंस may or may not be gas. तो वर्किंग सब्सटेंस is an ideal gas, for an ideal engine. अब ये आइडियल इंजन क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे. और रिमेंबर हमने यहाँ पे एक पॉइंट नोट किया था, वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट. तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस है इट इज आल्सो सिस्टम. तो वर्किंग सब्सटेंस इज सिस्टम इन दिस केस. वर्किंग substance is system here. Working substance is system which absorbs heat
converts part of it into work and rejects heat to the sink. So working substance is system which absorbs heat, converts part of it into work and rejects the remaining part to the environment. So sink matlab, and rejects the remaining part to the sink. Working substance is an ideal gas for an ideal engine. लेकिन अगर हमारे पास आइडियल इंजन नहीं है, फॉर एग्जांपल यू हैव अ पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, तो इन दैट केस वर्किंग सब्सटेंस इज अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर एंड एयर. वर्किंग सब्सटेंस is a mixture of fuel vapor and air. For gasoline, which is called as petrol here in India, बाहर जाओगे तो उसको gasoline बोलते हैं. For gasoline engine and diesel engine. तो अगर आप डीजल इंजन की बात कर रहे हो तो वर्किंग सब्सटेंस इज वेपर ऑफ डीजल अलॉन्ग विद एयर. और अगर आप गैसोलीन इंजन की बात कर रहे हो तो वर्किंग सब्सटेंस इज वेपर ऑफ पेट्रोल मतलब गैसोलीन अलॉन्ग विद एयर. तो ये था पहला कंपोनेंट. पहला कंपोनेंट क्या है? व्हाट इज फर्स्ट कंपोनेंट? वर्किंग सब्सटेंस. सेकंड कंपोनेंट इज हीट एंड कोल्ड रिजर्वायर्स. हीट एंड कोल्ड रिजर्वायर बोलते हैं इसको, या तो हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर भी बोलते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्वायर? पहले पता होना चाहिए. थर्मोडायनेमिक्स में वर्ड्स का मतलब पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो रिजर्वायर का मतलब ये होता है इन जनरल, सिर्फ सोर्स नहीं. मैंने हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर बोला है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्वायर? व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्वायर? Source is hot reservoir. What is the meaning of cold reservoir? थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन में पहले लेक्चर में गड़बड़ होगा, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है. दैट इज व्हाई आई गो लिटिल स्लो इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्टरी पार्ट. क्योंकि यहाँ पे अगर टर्म्स का मतलब ही नहीं समझा तो आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड पीवी डायग्राम आएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा कौन से पार्ट में क्या हो रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो पहले बेसिक क्लियर रखो. हॉट रिजर्वायर का मतलब ये कि आप उसमें से कितना भी हीट निकाल लो, आप चाहो उतना निकालो, यू कैन टेक आउट इन्फिनिट अमाउंट ऑफ हीट, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता. इट ऑलवेज रिमेन्स एट हायर टेम्परेचर. और कोल्ड रिजर्वायर का मतलब ये, आप चाहे उसको जितना हीट देना है दे दो, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता. इट ऑलवेज रिमेन्स एट लोअर टेम्परेचर. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आप जब गाड़ी चलाते हो तो योर व्हीकल टू व्हीलर हैज अ पेट्रोल इंजन, राइट. हीट कहाँ से आ रहा है? हीट इज कमिंग फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल, करेक्ट. डेफिनेटली पेट्रोल डालना पड़ेगा आपको, लेकिन जब तक आपकी गाड़ी में पेट्रोल है, आप उस इंजन में एक चेंबर है जहाँ पे फ्यूल इज गेटिंग बर्न्ड. तो वहां से आप जितना चाहो हीट निकाल लो, द टेम्परेचर ऑफ दैट चेंबर विल नॉट फॉल. इट ऑलवेज रिमेन्स एट हायर टेम्परेचर. उसको आप बोलते हो हॉट रिजर्वायर, राइट. फिर उस हीट का कन्वर्जन होगा वर्क में. कैसे कन्वर्जन होता है? आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर पिस्टन है. गैस ने, मतलब यहाँ पे गैस के यहाँ पे कौन है? वर्किंग सब्सटेंस. कौन है? मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर, मतलब मिक्सचर ऑफ पेट्रोल वेपर अलॉन्ग विथ एयर. तो उसने जो हीट एब्जॉर्ब किया, कहाँ से एब्जॉर्ब किया? हॉट रिजर्वायर से. उस हीट का पार्ट कन्वर्ट हुआ मैकेनिकल वर्क में. कैसे कन्वर्ट होता है? तो सिलेंडर के ऊपर पिस्टन है, पिस्टन को वर्किंग सब्सटेंस ऊपर मूव करता है. ऊपर मूव करना मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम. और वो जो मैकेनिकल मोशन होता है किसका? पिस्टन का, राइट. विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं उसको.
इट इज कनेक्टेड टू व्हील्स। तो पिस्टन जैसे ऊपर गया तो व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग। क्लियर? अब जो बचा हुआ हीट था जिसका कन्वर्जन वर्क में नहीं हो पाया, क्यों नहीं हुआ? इट कम्स फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमने जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखा, याद है? याद है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था? If two systems are in thermal equilibrium with a third system, then these two systems are also in thermal equilibrium with each other. First law of thermodynamics, amount of heat supplied partially increases internal energy and partially performs work. Second law of thermodynamics tells you work, mechanical work can be completely converted into heat, but heat cannot be completely converted into mechanical work. तो जो भी हीट वर्किंग सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब किया, कहां से एब्जॉर्ब किया? हॉट रिजर्वायर से, राइट? उसका कुछ पार्ट उसने कन्वर्ट किया किसमें? वर्क में। और वही वर्क है जो पिस्टन को मूव करता है, और वो पिस्टन का मोशन, पिस्टन के ऊपर शाफ्ट होता है जो आपकी गाड़ी के व्हील के साथ कनेक्टेड होता है। पिस्टन गोज अप, तो दैट मोशन ऑफ पिस्टन विल बेसिकली डिस्प्लेस शाफ्ट, और शाफ्ट इज कनेक्टेड टू व्हील एंड द व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग। जो हीट बच गया वो हीट जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? कोल्ड रिजर्वायर। एंड इन द केस ऑफ योर व्हीकल, कैन यू गेस विच इज कोल्ड रिजर्वायर? उसको सिंक भी बोलते हैं। देयर इज नो फैन। पेट्रोल इंजन में देयर इज नो फैन। मैंने आपको बताया था, गाड़ी चलाने के बाद गाड़ी पार्क कर दिया, उसके बाजू में रुक गए, साइलेंसर के बाद, साइलेंसर के बाजू में रुक गए, डू यू फील इट इज हॉट? तो हीट कहाँ जा रहा है? सराउंडिंग, मतलब एटमॉस्फेयर। अब ऐसा हुआ कि आपकी गाड़ी ने जो हीट रिलीज किया, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज हो गया, हुआ 27 का 37 हुआ, ऐसा हुआ, राइट? तो दैट इज कोल्ड रिजर्वायर। तो रिमेंबर दिस। तो सिंक क्यों बोलते हैं? सोर्स एंड सिंक। तो हॉट रिजर्वायर, इसको आप सोर्स भी बोलते हो, और कोल्ड रिजर्वायर को आप सिंक भी बोलते हो। व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंक? आपके घर में ऑफ कोर्स किचन होगा, उसमें एक जगह होता है जहां आप प्लेट्स को धोते हो, उसको क्या बोलते हैं? सिंक। व्हाई? सिंक का मतलब ये है, इट कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आपने टैप ओपन किया, नीचे एक पाइप होता है, पानी जितना छोड़ना है छोड़ते जाओ, इट विल टेक ऑल द वाटर। यहाँ पे सिंक का मतलब ये है, डजंट मैटर व्हाट अमाउंट ऑफ हीट यू वांट टू रिजेक्ट, कीप रिजेक्टिंग। जितना हीट आपको रिजेक्ट करना है, जितना हीट आपको देना है, वो लेते रहेगा विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंक। और हॉट रिजर्वायर को सोर्स क्यों बोलते हो? क्योंकि आपको चाहे जितना हीट निकालना है निकालते रहो, उसका टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होगा। तो सोर्स इज ऑलवेज एट अ कांस्टेंट, कांस्टेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट हायर टेम्परेचर, एंड सिंक इज ऑलवेज एट कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर। तो ये जो हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर है, व्हाट वर्किंग सब्सटेंस इज डूइंग, सिंक। और ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको इसको कनेक्ट करना ही पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। आपने एक बार वर्किंग सब्सटेंस क्या है डिफाइन कर दिया, और उसको उठाओ कोई, थर्मोडायनामिक्स डेंजरस है बहुत। Once you know what is working substance, second important element is hot and cold reservoir. तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, व्हाट इट विल डू, इट विल इंटरैक्ट किसके साथ? किसके साथ? दोनों के साथ, सोर्स के साथ एंड सिंक के साथ। तो मैं एक रफ डायग्राम बता देता हूँ आपको। ये एक्चुअली मुझे अभी नहीं बताना था, लेकिन you are, some of you are not able to imagine, so let us increase your imagination power. What will happen is, हमारे पास टोटल, आपने सुना है क्या फोर स्ट्रोक इंजन? नाम सुना है ऐसा? फोर स्ट्रोक, पहले जो गाड़ी आती थी ना, उसका इंजन था फोर स्ट्रोक। उसमें 4 स्ट्रोक थे और 4 अलग अलग ब्लॉक्स थे। एक ब्लॉक था सोर्स ऑफ हीट, एक ब्लॉक था सिंक, और एक था सिलेंडर जिसमें आपने वर्किंग सब्सटेंस भर के रखा है, और एक था इंसुलेटिंग ब्लॉक। तो हमारे पास टोटल 4, टोटल कितने? 4 ब्लॉक्स थे। तो रिमेंबर, वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा वो समझने के लिए पहले ब्लॉक समझ लो।
ये है सोर्स ऑफ हीट. दिस सोर्स ऑफ हीट will always remain at constant higher temperature. मुझे सिर्फ कांस्टेंट ये वर्ड नहीं सुनना है, क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट हायर टेम्परेचर पे होता है, ये पता होना चाहिए. तो व्हाट यू हैव इज, थोड़ा मैं और डिटेल बता देता हूँ, इट विल हेल्प यू आउट. इसके वॉल्स और इसका बेस होता है नॉन कंडक्टिंग इन नेचर. सिर्फ ऊपर का पार्ट होता है डायथर्मल, मतलब कंडक्टिंग इन नेचर. सिमिलर इज ट्रू विद दिस आल्सो, राइट. देन हमारे पास और एक ब्लॉक है. यू हैव वन मोर ब्लॉक, जिसमें आपने क्या किया, जिसमें आपने वर्किंग सब्सटेंस रखा है, एंड इट इज basically a cylinder fitted with movable massless and frictionless piston. Similarly, ये जो सिलेंडर है, इसका भी बेस क्या है, इसका बेस है कंडक्टिंग. तो दो ब्लॉक ऐसे हैं जिसका वॉल और बेस है नॉन कंडक्टिंग, सिर्फ ऊपर का सरफेस इज कंडक्टिंग. और एक सिलेंडर है विच इज फिटेड विद मूवेबल मासलेस पिस्टन. इसके वॉल और अपर सरफेस है नॉन कंडक्टिंग, सिर्फ बेस है कंडक्टिंग. यहाँ पे कौन है, वर्किंग सब्सटेंस, राइट. उसमें से ये जो एक पार्ट है, इसको आप बोलते हो सोर्स. और सोर्स को और एक नाम भी है विच इज कॉल्ड एज हॉट रिजर्वायर. क्या बोलते हैं इसको, हॉट रिजर्वायर. और हॉट रिजर्वायर, it is always at a constant higher temperature, TH, right. Then you have a cold reservoir. You have a cold reservoir which is always at constant lower temperature, TC. इसको आपने बोला सोर्स, इसको आपने बोला सिंक. अब टू अंडरस्टैंड, तीन बेसिक एलिमेंट्स है. एक है वर्किंग सब्सटेंस, क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस के बिना कुछ नहीं होगा. गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे तो कुछ नहीं हो सकता. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज फ्यूल. फ्यूल का वेपर बनता है, वेपर के साथ एयर मिक्स होता है, एंड देन इट इज कॉल्ड एज वर्किंग सब्सटेंस. गाड़ी में अगर फ्यूल ही नहीं है तो वो चलेगा नहीं. मैं कौन से इंजन की बात कर रहा हूँ, हीट इंजन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स. इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी, ईवी इज समथिंग एल्स, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. वी आर डिस्कसिंग हीट इंजन. दूसरा कंपोनेंट जो है, दूसरा एलिमेंट जो है, दैट इज हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर. अब होगा क्या, ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, इट इंटरैक्ट्स विद रिजर्वायर्स. दो रिजर्वायर है, एक है हॉट, एक है कोल्ड, राइट. तो चार स्ट्रोक कौन कौन से हैं अभी समझ लो. ये पहला स्ट्रोक है, मैं बताऊंगा डिटेल में. जब वर्किंग सब्सटेंस इज इन कांटेक्ट विद हॉट रिजर्वायर, ये फर्स्ट स्ट्रोक है, राइट. देन दिस इज सेकंड स्ट्रोक, जिसमें वर्किंग सब्सटेंस इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स. देन ये तीसरा स्ट्रोक है, when the working substance is in contact with cold reservoir. Then ये चौथा स्ट्रोक है, when again the working substance is in contact with block. कौन सा ब्लॉक, इंसुलेटिंग ब्लॉक, मतलब द वर्किंग सब्सटेंस इज आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग. तो होता क्या है, ये जो सेकेंड एलिमेंट है हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, द वर्किंग सब्सटेंस interacts with hot and cold reservoirs. In general, it interacts with reservoirs. Now you have to explain what is a hot reservoir. Hot reservoir मतलब क्या, बताओ. What is hot reservoir? लिखा है ना मैंने यहाँ पे, क्या है ये, किसका सोर्स है, किसका सोर्स है. तो वर्किंग सब्सटेंस क्या लेगा यहाँ से, हीट लेगा. तो हॉट रिजर्वायर is a source of heat, वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, ध्यान मेरे को यहीं पे चाहिए. आई कैन वाइंड दिस अप इन 2 lectures. You have to pay attention. डिटेल में टाइम पास नहीं ले रहा हूँ. What will working substance do? Working substance absorbs
working substance absorbs what? Absorbs heat from source, जिसको आप hot रिजर्व बोलते हो, at constant higher temperature, at constant higher temperature, pH, let us say. उसके बाद वो क्या करेगा, वो इस हीट को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल वर्क में. वो इस टॉपिक का पार्ट नहीं, बाद में देखेंगे. सिमिलरली कोल्ड रिजर्वायर जैसे ये सोर्स ऑफ हीट था, कोल्ड रिजर्वायर क्या है? सिंक ऑफ हीट है. कोल्ड रिजर्वायर इज अ सिंक ऑफ हीट. अगर आपको कंपेयर करना है तो जो घर में वॉश बेसिन होता है उसके ऊपर टैप होता है. टैप इज सोर्स ऑफ वाटर एंड दैट वॉश बेसिन इज सिंक ऑफ वाटर. इसको सिंक बोलते हैं बेसिकली. तो टैप में से जितना पानी चाहे निकाल लो, डजंट मैटर. सिंक में चाहे उतना डाल दो. तो यहाँ पे हॉट रिजर्वायर में से जितना हीट चाहे निकाल लो, तो टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स सेम. और सिंक में किसका सिंक है? ये सिंक ऑफ हीट. तो कोल्ड रिजर्वायर सिंक ऑफ हीट. वर्किंग सब्सटेंस अब एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा. वर्किंग सब्सटेंस रिजेक्ट्स हीट टू द सिंक एट कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर. तो वर्किंग सब्सटेंस rejects. Working substance rejects heat to the sink. Sink मतलब cold reservoir at constant lower temperature. और कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर किसका है? वर्किंग सब्सटेंस का नहीं. किसका है? सिंक का. इसको बोलेंगे ईसी. यहाँ तक क्लियर? तो ये दो एलिमेंट्स हो गए. तीसरा एलिमेंट है इज अ सिलेंडर, क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस को किसमें रखा आपने? सिलेंडर में. सिलेंडर के ऊपर क्या है? पिस्टन है. तो तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज सिलेंडर. और सिलेंडर बेसिकली हेल्प्स टू परफॉर्म वर्क, क्योंकि जो सिलेंडर के ऊपर पिस्टन रखा है आपने, दैट मूव्स. उसका डिस्प्लेसमेंट होगा तब जाके वर्क होगा. अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्सपांशन हुआ, तो वर्क इज डन ऑन द एनवायरमेंट. राइट? करेक्ट. तो वर्क इज डन ऑन द एनवायरमेंट, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम. बाय द सिस्टम मतलब वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस. तो तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सिलेंडर. तो व्हाट इज सिलेंडर? कैसे डिफाइन करोगे सिलेंडर को? सिलेंडर में क्या था? दैट इज व्हाई आई ड्रॉ डायग्राम सो दैट यू कैन एक्सप्लेन. क्या है सिलेंडर के अंदर? वर्किंग सब्सटेंस. राइट? so the working substance is enclosed in a cylinder fitted with movable massless frictionless piston. The working substance is enclosed in a cylinder fitted with बताओ, movable massless frictionless piston. The working substance helps to do what? To do work. और the working substance, the cylinder basically यहाँ पे the cylinder helps to absorb heat. कहाँ से absorb किया heat? From the source and reject to the sink. The cylinder helps, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, helps to convert heat into mechanical work, and reject the remaining heat to the sink. बाकी details you can find in the notes. Are clear? So which are three important elements of
a heat engine, working substance, hot and cold reservoir, cylinder. Working substance is gas. For ideal gas engine, it is a mixture of fuel vapor and air for petrol or diesel engine. Hot reservoir is source of heat. It is always at higher temperature TH. Cold reservoir is a sink of heat which is always at lower temperature TC. Then you have cylinder because वर्किंग सब्सटेंस ये गैस या वेपर होता है तो इसको ओपन में तो रख नहीं सकते, ओपन में रखोगे तो गया वो एनवायरनमेंट में, राइट. तो वर्किंग सब्सटेंस इज ऑलवेज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर व्हिच इज फिटेड विद मूवेबल मास्टर सेक्शनलेस पिस्टन, राइट. सिलेंडर जिसके ऊपर पिस्टन है, इट हेल्प क्योंकि पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट अगर होता है पिस्टन का तो हीट का कन्वर्जन हो रहा है वर्क में, करेक्ट. तो सिलेंडर helps to convert heat into mechanical work और mechanical work back to heat. तो back to heat conversion करना मतलब सिंक को रिजेक्ट करना, वो हम देखेंगे कैसे होता है. तो ये तीन चीजें पता होनी चाहिए. अब heat engine there are of two types. Heat engines they can be classified into two types depending on ये जो वर्किंग सब्सटेंस था इसका हीटिंग कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है मतलब एक्सटर्नली हो रहा है या फिर इंटरनली हो रहा है. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज जो वर्किंग सब्सटेंस है इसको आप इंजन के बाहर हीट करके इंजन के अंदर सप्लाई करते हो, इसको आप बोलते हो एक्सटर्नल कंबशन इंजन. क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल कंबशन इंजन. मतलब मेरे पास जो वर्किंग सब्सटेंस था उसको मैंने इंजन में, यहाँ पे जो इंजन है ना, इंजन ये इंजन है, मैंने वर्किंग सब्सटेंस को एक्सटर्नली हीट करके इंजन में सप्लाई किया. दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कंबशन इंजन. जैसे स्टीम इंजन याद होगा आपको, बहुत साल पहले स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ था जिसपे ट्रेन का भी ट्रायल लिया था और कार का भी ट्रायल लिया था. उसमें वाटर को ऑलरेडी स्टीम में कन्वर्ट करके सप्लाई किया, राइट. उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन. और दूसरा है इंटरनल कंबशन इंजन इन विच वर्किंग सब्सटेंस इज हीटेड इंटरनली. फॉर एग्जांपल पेट्रोल या डीजल इंजन दे आर इंटरनल कंबशन इंजन. तो इसलिए तो स्पार्क करना पड़ता है ना. इफ यू यूज बजाज की गाड़ी उस पर लिखा होता है DTSI, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन. स्पार्क क्यों करते हैं हम लोग, लाइटर यूज करते हैं, लाइटर क्यों करते हैं, गैस जलाने के लिए. गैस जलाना मतलब क्या, बेसिकली हीट प्रोड्यूस करना है, बर्न करना है. तो फ्यूल अपने आप बर्न होगा क्या, नहीं. तो फ्यूल बर्न करने के लिए क्या चाहिए, स्पार्क, करेक्ट. तो किसी इंजन में स्पार्क इंजन ऐसा लिखा है, ऑल दोस टाइप ऑफ इंजन्स आर इंटरनल कंबशन इंजन. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन हम कभी ऐसे करते नहीं और करना भी मत. पेट्रोल डीजल को बाहर से जला के अंदर डाल दिया. तो द वर्किंग सब्सटेंस इज बेसिकली क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, इज हीटेड इंटरनली. तो ये याद रखना. सो हीट इंजन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. हीट इंजन कैन बी क्लासिफाइड, हीट इंजन कैन बी क्लासिफाइड as पहला एक्सटर्नल कंबशन इंजन. In this type, the working substance is heated externally. बस इतना बताना जरूरी है, that's it. Example steam engine. दूसरा टाइप है इंटरनल कंबशन इंजन. यहाँ पे क्या बोलोगे, in this type the working substance is heated internally. The working substance is heated
internally. Example, petrol and diesel engine. So gasoline and diesel engine. Clear यहाँ तक, right? Then अब which are the steps involved? तो steps भी पता होने चाहिए. Which are different steps involved in an internal combustion engine या any engine in general? हमारा फोकस है internal combustion engine पे, मतलब we will be discussing गैसोलीन और डीजल इंजन. तो 3 स्टेप है. पहले स्टेप में क्या होगा? द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट. कहां से? फ्रॉम द सोर्स. तो पहले स्टेप में द वर्किंग सब्सटेंस, और मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख के दे रहा हूँ. इसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है. पीवी डायग्राम में पता होना चाहिए कि पहला स्टेप मतलब कौन सा पार्ट ऑफ द पीवी डायग्राम. तो वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा? एब्जॉर्ब्स हीट. एब्जॉर्ब्स हीट कहां से एब्जॉर्ब किया? फ्रॉम द सोर्स. फ्रॉम द सोर्स मतलब कौन? हॉट रिजर्वायर, दैट इज सोर्स. नंबर 2. नंबर 2 में क्या होता है? क्या होता है नंबर 2 में? क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब करके क्या होगा? मैकेनिकल वर्क. पार्ट ऑफ हीट is converted. Part of heat is converted into mechanical work. और जो तीसरा स्टेप है, the remaining heat is rejected to the sink. Rejected to the sink. Sink मतलब कौन? कोल्ड रिजर्वायर, मतलब सिंक. यहाँ तक क्लियर? अब ये जो 3 स्टेप्स है, तो एनी हीट इंजन कैन आल्सो बी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दीज 3 स्टेप्स. तो अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ लो. तो हीट इंजन, क्योंकि अगर आपको डायग्राम समझ में आया तो आपको फॉर्मूला समझ में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बनाने वाले हैं. ऊपर से एक चीज समझ लो, दिस 3 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने एक वर्ड यूज किया, हीट एब्जॉर्ब. तो हीट इज फ्लोइंग इनटू द सिस्टम. पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव. वेरी गुड. तो ये जो हीट एब्जॉर्ब है, इसने किससे लिया? हॉट रिजर्वायर से. तो मैं इसको डिनोट करूंगा Q सफिक्स H, बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम हॉट रिजर्वायर एंड दैट विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव. और यहाँ पे हीट रिजेक्ट हुआ. रिजेक्ट होना मतलब सिस्टम से बाहर जाना. किसको गया? कोल्ड रिजर्वायर को. तो क्या डिनोट करेंगे? QC. तो बाय कन्वेंशन ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? नेगेटिव, राइट. तो एक एक वर्ड, सिंगल वर्ड, ईच वर्ड इज इंपॉर्टेंट. तो रिजेक्टेड मतलब हीट इज नेगेटिव एंड एब्जॉर्ब मतलब हीट इज पॉजिटिव. तो हीट इंजन कैन बी रिप्रेजेंटेड diagrammatically as. तो ये ब्लॉक डायग्राम है. सो क्या बोलते हैं? ब्लॉक डायग्राम. लेकिन अगर आपको ब्लॉक्स नहीं दिखाने तो उसका और एक तरीका है. यू कैन शो इट इन अदर वे. सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा एक सोर्स ऑफ हीट and then you have to show a sink of heat. मैं बता देता हूँ. I'll show source and sink. तो एक है source. This is source of heat which is hot reservoir. This is sink of heat which is cold reservoir. Good. Then working substance ने heat किससे लिया? सोर्स से लिया. क्या किया उस हीट का? मैकेनिकल वर्क. और जो बच गया वो कहाँ गया? वो सिंक के पास गया. तो आपको पाइपलाइंस दिखाने पड़ेंगे. एंड बाय द वे इन दिस केस दिस पाइपलाइंस आर कॉल्ड एज हीट पाइपलाइंस. जैसे घर में भी पाइपलाइन होता है ना, वो क्या होता है? वाटर पाइपलाइन होता है. क्यों? क्योंकि उसमें क्या फ्लो होता है? वाटर फ्लो होता है. यहाँ पे कौन फ्लो होगा?
हीट, तो इसको क्या बोलेंगे, हीट पाइपलाइन, सिंपल। तो हमको यहाँ पे हीट पाइपलाइन दिखाने हैं। अब जानबूझ के मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड, आगे समझेगा। ओके, ये कौन था, हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर, इसका टेम्परेचर कितना था, Ts। ये कौन है, कोल्ड रिजर्वायर, इसका टेम्परेचर कितना है, करेक्ट। वर्किंग सब्सटेंस ने हीट किससे लिया, हॉट रिजर्वायर से, कितना लिया, QH। इसका एक पार्ट किसमें कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकल वर्क, और मैकेनिकल वर्क हमेशा एक्सटर्नल होता है क्योंकि सिलेंडर में जो पिस्टन है उसका मोशन ऊपर होगा, ऊपर होगा मतलब बाहर की तरफ होगा, तो एरोहेड शुड बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स बिकॉज वर्क, ये हीट जितना हमने एब्जॉर्ब किया उसका कुछ पार्ट इज डूइंग वर्क। अगर ये समझ में आ गया तो हीट इंजन का उल्टा केस रेफ्रिजरेटर, वो भी समझेगा। हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर इज ऑल्सो हीट इंजन ऑपरेटेड इन रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पे आप हॉट रिजर्वायर से हीट ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, उसका पार्ट कन्वर्ट कर रहे हो, किस में कर रहे हो, वर्क में, और बचा हुआ किसको दे रहे हो, कोल्ड को। हाँ, प्रैक्टिकली सोचो, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू, हाँ तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है बिकॉज यू आर टेकिंग हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी एंड देन रिजेक्टिंग पार्ट टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी। अब रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशन में क्या होता है, थिंक, सपोज हमारे पास एक रूम है जिसको हमको कोल्ड करना है, ठंडा करना है ना, रेफ्रिजरेटर में भी वही होता है, अंदर के चेम्बर को ठंडा करना होता है। सपोज मैंने एयर कंडीशन ऑन किया ही नहीं, सपोज अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर इज मोर और लेस सेम, हीट फ्लो होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, because because heat only flows when there is temperature difference and heat only flows from higher temperature to, हमको तो उल्टा करना है, इधर भी 27 बाहर भी 27, जबरदस्ती हीट निकालना है, क्या करना है, जबरदस्ती हीट निकालना है, तो एरो हेड उल्टा होगा, मतलब वर्क विल बी डन। यहाँ पे हमने वर्क सिस्टम से लिया, वहां पे सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा, तो ये एरो हेड्स विल चेंज एवरीथिंग, रिमेंबर। तो यहाँ पे आपने QH अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया, कहाँ से, सोर्स से, उसका कुछ पार्ट हुआ वर्क, और बाकी कहाँ गया, कोल्ड रिजर्वायर को, तो QC। यहाँ तक क्लियर, पक्का। और इफ यू सी, मैंने जानबूझ के ये जो हीट पाइपलाइन है, रिजर्व कॉल्ड है हीट पाइपलाइन, मैंने जानबूझ के इसका विड्थ ज्यादा रखा है क्योंकि मोर अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड from the hot reservoir. So the width of heat pipeline is directly proportional in case of heat absorbed. It is directly proportional to the amount of heat absorbed. यहाँ पे width of pipeline is directly proportional to the amount of work done, and यहाँ पे width of heat pipeline is directly proportional to the amount of heat rejected. अब डिपेंड करेगा इंजन टू इंजन, कोई इंजन जितना भी आपने हीट एब्जॉर्ब किया उसके 20% को रिजेक्ट किया और 80% है वर्क, कितना वर्क है, 80%। तो इस केस में ये जो आपके पास पाइपलाइन है, ये हीट पाइपलाइन बहुत बहुत छोटा होगा, और ये हीट पाइपलाइन, ये वर्क का पाइपलाइन बड़ा होगा। ओके, तो 80% is converted to work, 20% is rejected. So the width of pipeline is directly proportional to amount of heat absorbed, amount of work done, and amount of heat rejected. यहाँ तक क्लियर, पक्का। अब टू मेक इक्वेशन, नोट्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि टेक्स्ट बुक का लिखने का तरीका वो है, बट आई मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। लुक एट द एरो, दो एरो ऐसे है जो डाउनवर्ड्स है और एक एरो, तीनों ही डाउनवर्ड्स है, बट व्हाट इज हैपनिंग, टोटल अमाउंट ऑफ हीट कहाँ से लिया आपने, हीट रिजर्वायर से, उसका पार्ट क्या किया आपने, वर्क, बाकी पार्ट क्या किया, रिजेक्ट किया। तो व्हाट इज वर्क डन का इक्वेशन, हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड, हीट एब्जॉर्ब इज QH एंड हीट रिजेक्टेड इज QC। हीट एब्जॉर्ब क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव, है क्या पॉजिटिव,
नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है, हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं है, और हीट रिजेक्टेड करना चाहिए था नेगेटिव, तो नेगेटिव है क्या? यस, यहाँ तक क्लियर, पक्का, राइट? तो लुक ओनली फ्रॉम द डायग्राम यू कैन मेक एन इक्वेशन, क्लियर? अब हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, ईटा। यही इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आएगा, सिर्फ वहां पे उसको वर्ड इफिशियंसी नहीं बोलेंगे, उसको कुछ और बोलते हैं, वो तब देखेंगे। तो अब इफिशियंसी का मतलब क्या? हमने जितना भी हीट एब्जॉर्ब किया उसका कितना पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज इफिशियंसी। So it is the ratio of work done to that of heat absorbed. It is the ratio of, it is the ratio of work done to that of, it is the ratio of mechanical work to that of heat absorbed. It is the ratio of work output, क्योंकि work ये output में है और heat ये input में है। Look, हमने वर्किंग सब्सटेंस को हीट दिया था, वो था हीट इनपुट, और ये जो हीट लिया वर्किंग सब्सटेंस ने एज अ इनपुट, इसने क्या किया, पिस्टन को ऊपर शिफ्ट किया, तो वर्क क्या है, आउटपुट। तो इफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। व्हाट इज वर्क का इक्वेशन? QH minus QC upon QH. QH upon QH is 1 minus QC upon QH, करेक्ट? लेकिन जितना ज्यादा हीट होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो 1 minus TC by TH. दिस इज द इक्वेशन फॉर efficiency of a heat engine. आइडियल इंजन का एफिशिएंसी होता है 1, जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हुआ, नथिंग इज रिजेक्टेड टू द सेम। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, बिकॉज ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यू कैन नॉट कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू वर्क, करेक्ट? तो याद रखना, प्रैक्टिकल इंजन का इफिशियंसी इट इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ तक क्लियर? तो इसके आगे का पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन।